नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम पढ़ रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिस तरह से डेरिवेटिव एंड देन एंटी डेरिवेटिव, इनकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सिमिलर वे से लैपलास ट्रांसफॉर्म देन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, एंड दिस concepts will able to solve with the help of these concepts we will able to solve differential equations. So first of all, see the definition of inverse Laplace transform. If L of ft is known, means Laplace transform of some function of t is known, say f of s, then this f of t is called L inverse of f of s or inverse Laplace transform of f of s, and we write it as f of t as L inverse of f of s. This f of t will be L inverse of f of s. This operator L inverse, this operator is called inverse Laplace transformation. Now, depending on the nature of problems, we find inverse Laplace transform by three methods. Number one, results based on Laplace transform. उसकी हेल्प से पहले हम inverse Laplace transform के results derive करेंगे. Then second one is method of partial fractions, and third one will be convolution theorem. तो start करते हैं. बेसिक जो लैपलास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज थी, उनसे तैयार होने वाले इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म. सो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस. वी नो दैट L of 1 is 1 by s. So L inverse of 1 by s is 1. L of t power n is gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So L inverse of this function will be equal to t power n. फिर हमने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए. सेम लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आल्सो. तो जो कांस्टेंट होगा वो ऑपरेटर के बाहर आ सकता है और उसको बाहर लाने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए. तो रिजल्ट विल बी L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर n plus 1 is t power n upon gamma n plus 1. And we know that gamma n plus 1 is n factorial if n is natural number or even 0, 0, 1, 2, 3, etc. So this is most general result. This is the deduction L inverse of 1 upon s square. अब इसको इसके साथ कंपेयर किया s square, तो n plus 1 is 2, n will be 1. Result will be t power 1 upon gamma 1 plus 1, that is gamma 2, which is equal to 1 factorial, which is 1. So answer will be t only. Next is L of e power at is equal to 1 upon s minus a, provided s is greater than a. Then L inverse of 1 upon s minus a is equal to e power at. लैपलास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट से इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स डिराइव हो रहे हैं. Now trigonometric and hyperbolic cosine and sine. L of cos at is equal to s upon s square plus a square. So L inverse of function of s is equal to cos at. तो ये रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे. Now L of sin at is a upon s square plus a square. So L inverse of this function will be equal to sin at. फिर a L इनवर्स से बाहर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो बन जाएगा रिजल्ट L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज sin at अपॉन a. नेक्स्ट L ऑफ cos h at is equal to s upon s square minus a square, which gives L inverse of s upon s square minus a square is equal to cos h at, hyperbolic cos at. And same
sin h at is equal to a upon s square minus a square, which gives L inverse of this function a upon s square minus a square will be sin h at a L inverse के बाहर आके क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो रिजल्ट विल बी L inverse of 1 upon s square minus a square is equal to sin h at upon a। तो बेसिकली यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स याद रहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की हो यदि, तो उनसे L इनवर्स के रिजल्ट्स याद रखना आसान होगा। अब एक बार डायरेक्ट L इनवर्स के रिजल्ट्स बोल लेते हैं। L इनवर्स ऑफ 1 upon s is 1, L inverse of 1 upon s power n plus 1 is t power n upon gamma n plus 1 or t power n upon n factorial if n is 0, 1, 2, 3 etc. L inverse of 1 upon s square is equal to t, deduction of this result. L inverse of 1 upon s minus a is e power at. L inverse of s upon s square plus a square is cos at. L inverse of 1 upon s square minus a square is sin at upon a. L inverse of s upon s square minus a square is cos h at, and L inverse of s square minus a square is sin h at upon a. तो ये तो एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स जनरेट हुए। कुछ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं। We know that linear property of Laplace transform, वहां से linear property for inverse Laplace transform मिल जाता है। देखते हैं, if L inverse of fs is equal to f of t and L inverse of g of s is equal to g of t, then L inverse of a f of s plus b g of s is equal to a बाहर L inverse of f of s, that will be a f of t, plus b बाहर L inverse of g of t, that is b g of t. Linear property for inverse Laplace transform. And next is first shifting property. First shifting property or translation property. First shifting property. First shifting property. If L inverse of f of s is known, f of t, then this property says L inverse of f of s minus a, यदि s में कुछ चेंज हो s minus a, तो it is equal to e power at, ये जो a एरिया सब्ट्रैक्ट होता था बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर बाहर हो गया, माइनस ए होगा तो ई पावर 80 प्लस ए होगा तो ई पावर माइनस 80, रिवर्स करेक्शन है उनका, इनटू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। एक्सपोनेंशियल फैक्टर बाहर करके इट विल बी एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड इट इज नोन एफ ऑफ टी, तो आंसर विल बी ई पावर 80 इनटू एफ ऑफ टी। तो ये प्रॉपर्टीज और ये एलिमेंट्री फंक्शन से तैयार हुए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एग्जांपल्स, find, question is find
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऐसा हो सकता है, या फिर डायरेक्ट नंबर 1 L इनवर्स ऑफ, we take problem 12 upon 4s minus 8। जो नोटेशंस होंगे वो नोटेशंस कंटिन्यू कीजिएगा। कर्ली ब्रैकेट के साथ होगा तो कर्ली ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, राउंड ब्रैकेट के साथ होगा तो राउंड ब्रैकेट के साथ। देखते हैं। So this is function of s, capital F of s. So start with L inverse of 12 upon 4s minus 8। तो यहां से तो 4 कॉमन दिखता है, L inverse of 12 upon 4 कॉमन s minus 2, 4 कॉमन s minus 2, 4 डिवाइड कर देते हैं तो it is equal to L inverse of 3 upon s minus 2। हमने L इनवर्स की लीनियर प्रॉपर्टी भी देखी, तो कांस्टेंट ऑपरेटर के बाहर it is 3 L inverse of 1 upon s minus 2। Now elementary functions में था रिजल्ट L inverse 1 upon s minus a is equal to e power at। So this will be 3 into e power at। a here is 2। So this is answer। This will be the answer। यदि यहाँ पर प्लस होता, प्लस के साथ प्रॉब्लम होता, s plus 2 होता, 1 upon s plus 2, तो हो जाता था e power minus 2t। These are elementary problems, short question से related problems। Number 2, L inverse of 1 upon s square minus 4s plus 20। ओके, नाउ सी, अभी तो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल में। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास रिजल्ट्स थे वो डिनोमिनेटर में या तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए था या s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए था। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमको सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने होंगे। अच्छा, ऊपर कांस्टेंट है तो वो सिचुएशन इजी है, पहले बन जाए फिर देखते हैं ऊपर क्या किया जा सकता है। इसको सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्टैंडर्ड मेथड है डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ s बाय 2। तो -4 को डिवाइड किया 2 से, जो होगा उसका स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, रिजल्ट विल बी -2, उसका स्क्वायर इज 4। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म ऑफ s के बाद, तो दिस कैन बी रिटन एज L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 माइनस 4 प्लस 20। ये मेथड था। एक बार फिर से देखते हैं, s का जो कोएफिशिएंट होगा उसे 2 से डिवाइड करें, जो नंबर होगा उसका स्क्वायर, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म ऑफ s के बाद। अब ये करने के बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी ये एक परफेक्ट स्क्वायर देगा हमको, और ये कांस्टेंट को सिंपलीफाई करेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेना, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से s बीच में से साइन, और ये नंबर किसका स्क्वायर है, वो नंबर का होल स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो s स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2s माइनस 4s प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इट इज ऑलराइट। -4 प्लस 20 इज 16। ये भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है, तो इट बिकम्स L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के समान दिख रहा है, लेकिन s अकेला नहीं है, s माइनस 2 का स्क्वायर है। फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी, यदि f ऑफ s में s के बदले s माइनस a हो या s प्लस a हो, तो ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से उसको वहां से बाहर कर देते हैं। तो इसको यहां से बाहर कर दिया, माइनस है तो e पावर 2t बाहर, बच गया L इनवर्स
1 upon s square plus 4 square by first shifting property of L inverse. First shifting property of L inverse. अब ये स्टैंडर्ड रूल है. दिस इज e पावर 2t, नीचे प्लस है ऊपर कांस्टेंट है, तो sin at that is 4t upon 4 by elementary results L inverse of 1 upon s square plus 4. It is, so this is the answer, 1 by 4 e power 2t into sin 4t. Next problem, number 3. Let L inverse s upon s plus 4 का स्क्वायर, s upon s plus 4 का स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर की टर्म नहीं है. यदि प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म होती तो और ऊपर s है तो यहाँ पर cos फंक्शन या cosec फंक्शन का रिजल्ट आ सकता था. नहीं होने की वजह से अब जरा अलग तरीके से सोचना होगा. देखते हैं, s प्लस 4 का स्क्वायर है, मतलब s इज विथ प्लस 4. तो जहां जहां भी प्रॉब्लम में s होगा वो सब s हमको s प्लस 4 के फॉर्म में ऑब्जर्व करना होगा. इसका मतलब ये s को भी s प्लस 4 के फॉर्म में ऑब्जर्व करना होगा. दिस कैन बी रिटन एज L इनवर्स ऑफ s प्लस 4 माइनस 4 अपॉन s प्लस 4 का स्क्वायर. नोट दिस, हमको s अकेले नहीं चलेगा, वो काम का नहीं, तो प्लस 4 के माइनस 4 के. अब ये करने से टर्म सेपरेट की जा सकती है. L इनवर्स ऑफ s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s प्लस 4 का स्क्वायर. अब लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. L इनवर्स ऑफ कैपिटल Fs माइनस L इनवर्स ऑफ कैपिटल Gs, तो ये बन गया L इनवर्स ऑफ s प्लस, अच्छा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. एक s प्लस 4 डिवाइड हो गया, s प्लस 4 डिवाइड भी कर दिया, साथ में सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहा है, माइनस 4 बाहर कांस्टेंट कर दो बाहर, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4 का स्क्वायर. L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस, लीनियर फैक्टर है, s प्लस 4 लीनियर फैक्टर है, तो एलिमेंट्री रिजल्ट मिला था इसका e पावर माइनस 4t, और यहाँ 1 अपॉन s प्लस 4 का स्क्वायर है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ s अकेला नहीं है, s के साथ कुछ कांस्टेंट है, तो वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से होगा. उसको बाहर करो, वहां से बाहर कर दो. इनवर्स ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो माइनस 4 अपनी जगह प्लस 4 है, तो e पावर माइनस 4 की फैक्टर की वजह से वो s के साथ प्लस 4 आया होगा, उसको अलग कर देते, वो रह जाएगा L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स. यहाँ यूज किया हमने बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स. ये जब इसको सेपरेट किया था लीनियर प्रॉपर्टी था. जहां जहां पॉसिबल है वहां रीजनिंग मेंशन कीजिएगा. ये e पावर माइनस 4t दोनों टर्म में दिख रहा है, कॉमन ले लेते, बच गए यहाँ 1 माइनस 4, यहाँ 1 माइनस 4, एंड L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर. यस, दिस s स्क्वायर कैन बी रिटन एज n प्लस 1 के फॉर्म में, 1 प्लस 1, तो n इज 1, तो वो दे देगा हमको t पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, that will t power 1 upon 1 factorial, that is 4t only. So L inverse of s upon s plus 4 का स्क्वायर is e power minus 4t. कॉमन ले दोनों टर्म में से, यहाँ रह गया 1 minus 4 और इसका लैप्लास इनवर्स t. तो दिस इज द आंसर. तो ये सिंपल एग्जांपल्स है डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स derived from elementary functions. Yes.
और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नंबर 4, L inverse of 3 s square minus 2 का स्क्वायर अपॉन 2s स्क्वायर। ओके, ठीक। अब न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन है इसका, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है, तो बेटर उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर, L इनवर्स ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूले से एक्सपांड कर दिया टर्म को, सेपरेट हो सकती है टर्म्स। 3/2 ये कांस्टेंट लीनियर प्रॉपर्टी से बाहर आया हुआ, L इनवर्स ऑफ, सेपरेट कर देते हैं, s पावर 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 L इनवर्स ऑफ s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/s स्क्वायर, 4/s स्क्वायर, which is equal to there is some correction, L inverse of s square कोई रिजल्ट नहीं है, दिस इज s पावर 5। न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर होगा, तब डिनोमिनेटर में हमको s की टर्म मिल पाएंगी। So make this correction. This is not 2. This is 5. This is 5. This is 5. 5. So it will be 1 upon s minus 4 upon s cube plus 4 upon s power 5. प्रॉब्लम लिखते समय मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक यहाँ पकड़ में आई थी। ओके, अब लीनियर प्रॉपर्टी से टर्म सेपरेट हो जाएगी सर। 3/2 L इनवर्स ऑफ 1/s, अब हम ये ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस 4 टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब प्लस 4 टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1/s पावर 5। तो ये सभी इस रिजल्ट पर डिपेंडेंट हो गई। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर n प्लस 1 इज t पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। तो सब में n क्या है ये देखते चलते हैं। 3/2 L इनवर्स 1/s, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 माइनस 4 टाइम्स 3 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर विल बी t पावर n मतलब t पावर 2, और 2 नेचुरल नंबर है, अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल if n is natural number, this is equal to t power n upon n factorial if n is natural number। okay, plus 4 times s पावर 5 है डिनोमिनेटर में, तो दैट इज 4 प्लस 1 है, n की वैल्यू हो गई 4, तो रिजल्ट विल बी t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल यूजिंग दिस रिजल्ट, which is equal to 3/2 1 minus 2 factorial is 2, डिवाइड कर दिया 2t स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2, तो एक 4 डिवाइड हो गया, 3 into 2 6 बचा, प्लस t पावर 4/6, दिस विल बी द आंसर।
number 5. Example number 5. L inverse of 1 upon under root 3s plus 4. Under root 3s plus 4. प्लस 4 अंडर रूट में, मतलब इसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर लेते पहले तो। अच्छा, और जितने फॉर्मूले हमने पढ़े सब में s का कोएफिशिएंट 1 था, तो उसका कोएफिशिएंट भी 1 बनाना होगा। तो दिस इज L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3, ऐसा नहीं लिखते, रूट के अंदर 3 कॉमन s प्लस 4/3। पहले s का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 s प्लस 4/3 का पावर 1/2, वो भी रूट में होगा, पावर में लिखते हैं उसको, रूट में जाने तो रूट 3 इंटू रूट s प्लस 4/3, कांस्टेंट बाहर, 1/√3 बाहर, L इनवर्स ऑफ, अब लिख देते इसको s प्लस 4/3 का पावर हाफ। अब ये है 1 अपॉन लीनियर फैक्टर है s प्लस a और पावर है 1/। अब s प्लस a है, इसका मतलब ये आया होगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर बाहर कर दो उसमें, 1/√3 प्लस है तो e पावर माइनस 4/3t L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर हाफ, ऐसा हो गया बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स। अब इसके बारे में सोचना होगा, ये s पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 हाफ है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, उधर गया -1 प्लस हाफ यानी माइनस हाफ। तो दिस कैन बी रिटन एज, हम उसको उसके फॉर्म में लिख देते हैं, 1 अपॉन रूट 3 e पावर माइनस 4/3 तो चलेगा, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर माइनस हाफ प्लस 1, s पावर n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हमने। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इट इज 1/√3 e पावर माइनस 4/3t t पावर n यानी t पावर माइनस हाफ अपॉन gamma n plus 1 minus half plus 1, minus half plus 1 is half and gamma half is root pi। तो इसको ठीक कर लेते हैं, तो रूट पाई, इसकी वैल्यू होगी रूट पाई 1 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में ही है रूट 3, पहले से रूट पाई आ गया, तो रूट 3 पाई e पावर माइनस 4/3t इंटू t पावर माइनस हाफ 1 upon root t will be the answer. Okay, yes, you can take a screenshot. ये सब एलिमेंट्री इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स हैं। आप बुक से और भी इस तरह के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिएगा। वन मोर प्रॉब्लम विल डू। एग्जांपल नंबर से example 6, find L inverse of 1/2 1 upon s plus 3 plus s plus 3 upon s square plus 3s plus 30, s square plus 6s 6s plus 30। ओके,
this is the problem. इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है पहले तो, इसको ऑपरेटर के बाहर लिया जा सकता है 1/2, और साथ ही साथ में हम लीनियर प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं। तो 1/2 पूरे के लिए कॉमन है, तो पूरे के लिए कॉमन L इनवर्स ऑफ 1/s+3 प्लस L इनवर्स ऑफ s+3/s² प्लस 6s प्लस 13 बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स। अब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लीनियर फैक्टर है विद पावर 1, तो इससे रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 कर्ली ब्रैकेट में e पावर -2t प्लस, इसके बारे में सोचना होगा, न्यूमरेटर इज s+3 और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो s² के साथ प्लस s है ये नहीं चलेगा, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में देखना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर की अभी हमने थोड़ी देर पहले मेथड देखी, डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ s बाय 2 जो होगा नंबर उसका स्क्वायर, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, डू दिस वन s+3/s² प्लस 6s, 6 डिवाइडेड बाय 2 ये जो होगा उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, ऐड करते हैं +9 -9 प्लस 13, ओके। फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर दे देगी, इट इज हाफ e पावर -3t प्लस L इनवर्स ऑफ s+3/s+3, यहाँ से s लिया फर्स्ट टर्म में से, बीच में से साइन, और ये नंबर से स्क्वायर रूट, ये मिला, ये ब्रैकेट में जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो गया। फर्स्ट 3 टर्म चेक कर लीजिएगा, -9 प्लस 13 इज +4, इट कैन बी रिटन एज 2², लिख देते हैं यहाँ पर 2²। अब s/s² प्लस a² का फॉर्म दिख रहा है, s/s² प्लस a² का फॉर्म दिख रहा है, बट s अकेला नहीं है, s के साथ +3 ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर है, तो ये आया होगा फैक्टर की वजह से, फैक्टर को बाहर कर दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो इट विल बी 1/2 e पावर -3t प्लस 3 है, तो फैक्टर होगा -e पावर -3t बाहर, L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 2² बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ L इनवर्स, और अब ये L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 2², ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एलिमेंट्री रिजल्ट से मिलेगा। ये दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 e पावर -3t, यहाँ रह गया 1 प्लस, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर cos 2t, a is 2 cos 2t। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स, सैंपल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम। तब तक के लिए जय गणेश।